کراچی میں ڈکیتی اور لوٹ مار کی وارداتوں میں اضافہ، شہریوں کی برداشت کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ 2 مختلف واقعات میں 3 ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا۔ ناظم آباد میٹرک بورڈ آفس کے قریب شہری کی فائرنگ سے 2 مبینہ ڈاکو ہلاک۔ گولیاں چلنے کا واقعہ لوٹ مار کے دوران پیش آیا۔ ایس ایس پی سینٹرل ذی شان صدیقی شفیق موڑ کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزمان کی گاڑی میں سوار فیملی سے لوٹ مار، ملزمان کے فرار ہونے کی کوشش پر گارڈ نے فائرنگ کر دی۔ 1 مبینہ ڈاکو ہلاک، دوسرا فرار۔ امریکی صدر کا پھر ایران سے متعلق دھمکی آمیز رویہ۔ ایران کو سنبھالنے کے 2 طریقے ہیں، فوجی یا آپ معاہدہ کریں۔ میں معاہدے کو ترجیح دیتا ہوں۔ ایرانی عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، زیلنسکی کا رویہ پسند نہیں کرتا، مجھے نہیں لگتا وہ امریکہ کے شکر گزار ہیں۔ یوکرینی صدر نے امریکہ سے ایسے پیسے لیے جیسے بچے سے کینڈی لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے زیلنسکی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے واپس امریکہ آئیں گے۔ روس پر مجھ سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوا۔ پیوٹن یہ بات کہہ چکے ہیں، میں دفاعی اخراجات میں کمی کرنا پسند کروں گا، لیکن ابھی نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو۔ یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم عثمان ججہ گرفتار۔ عثمان ججہ کو سیالکوٹ کے علاقہ موری کے ججہ سے گرفتار کیا گیا۔ عثمان ججہ سیالکوٹ جیل سے فرار ہو کر گلگت بلتستان میں روپوش تھا۔ عثمان ججہ انسانی سمگلنگ کا عالمی راکٹ چلاتا تھا۔ ملزم نے کشتی حادثے میں جاں بحق نوجوان کو بیرون ملک سمگل کیا تھا۔ کشتی حادثے کے وقت ملزم جھگڑے کے کیس میں سیالکوٹ جیل میں تھا۔ ایف آئی اے اور پولیس کی غفلت کے باعث ملزم ضمانت کرا کر فرار ہو گیا تھا۔ فیصل آباد میں ایف آئی اے کی کارروائی، انسانی سمگلنگ میں ملوث بدنام ضمانت چنوٹی گینگ کا اہم رکن گرفتار۔ ملزم کی شناخت غلام مصطفیٰ کے نام سے ہوئی۔ اب تک چنوٹی گینگ کے 9 ارکان گرفتار ہو چکے۔ ترجمان ایف آئی اے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ظلم کی انتہا۔ بگوانی شمالی میں پنچایت نے غریب شخص کی 11 سالہ بچی کو زبردستی وانی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ بچی کے والد عادل سے زبردستی 7 لاکھ روپے تاوان بھی لیا۔ متاثرہ بچی کے والد عادل نے برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ اپنے آخری پیغام میں ملزمان کو بے نقاب کیا۔ ملزمان عنایت اللہ اور فرید سمیت دیگر نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ ملزمان کو معاف نہ کیا جائے، میرے خاندان اور بچوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ شہری کا آخری پیغام۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ متاثرہ بچی ورثاء کے حوالے کر دی۔ پولیس کا موقف۔ لاہور کے میو اسپتال کے چیسٹ وارڈ میں انجیکشن کے مبینہ ری ایکشن سے مریضہ جاں بحق، ایک کی حالت تشویشناک۔ انجیکشن کے مبینہ ری ایکشن سے مزید 14 مریض متاثر، 3 وینٹیلیٹر پر ہیں۔ اسپتال میں انجیکشن کا استعمال روک دیا گیا۔ انکوائری کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر اسرار الحق کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ کمیٹی میں چیف فارماسسٹ اور ڈپٹی نرسنگ اے ایم ایس اسپتال بھی شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ حیرانگی کی بات، انجیکشن معمول کے مطابق لگایا گیا تھا۔ پروفیسر ہارون حامد۔ وزیر اعظم کی آئی ٹی ٹریننگ کے منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ہواوے ٹیکنالوجی کے وفد کی شرکت۔ 3 لاکھ نوجوانوں کو آئی سی ٹی ٹریننگ کی فراہمی سے متعلق امور کا جائزہ۔ نوجوانوں کو ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ہواوے ٹیکنالوجیز کے نمائندوں کا پاکستان میں جدید تربیتی پروگرامز کے لیے اپنے عزم کا اظہار۔ گزشتہ برس چین میں ہواوے ٹیکنالوجیز کے ساتھ معاہدوں پر عمل درآمد کا بھی جائزہ۔ ٹیکنالوجی کے فروغ اور ڈیجیٹل انقلاب میں نوجوانوں کا کلیدی کردار ہے۔ حکومت نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے لیس کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے۔ ہواوے کے آئی سی ٹی ٹریننگ پروگرام سے آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہوگا، نوجوانوں کو روزگار کے حصول میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ 3 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو آن لائن تربیت فراہم کی جائے گی۔ آئی سی ٹی ٹریننگ پورٹل کا باقاعدہ افتتاح وزیر اعظم کریں گے۔ کوئی مزدور بھوکا نہ سوئے، مریم نواز نے مزدوروں کی فلاح کے لیے پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں کم از کم اجرت کا نفاذ یقینی بنانے کا حکم۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم منصوبوں کی منظوری دے دی۔ لاہور ڈیفنس روڈ پر 200 بیڈ کا
कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला। रहीम यार खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की असूली मंजूरी। मरियम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान भी तलब कर लिया। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग का भी हुक्म। पंजाब को मजदूरों की फलाह बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का अज़्म रखते हैं। मेहनत का अल्लाह के दोस्त हैं, उन्हें नाराज नहीं कर सकते। मजदूर की उजरत, इलाज, मुआवजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। मुश्तरका इजलास का एक निकाती एजेंडा जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत हुकूमत की एक साल कारकर्दगी का अहाता करने के साथ तजावीज़ भी देंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दिन 2 बजे तलक। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद के तमाम अरकान पार्लियामेंट को पहुंचने की हिदायत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान एहतजाज की हिकमत अमली बनाई जाएगी। मौलाना फजल रहमान आपके साथ इस एहतजाज में आते हैं मुश्तरका इजलास के दौरान, तो इसका मतलब है कि फिर मुझे तो जरदारी साहब के लिए डेस्क बजाते नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है चंद माह के लिए शायद अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस का सेहरा जो है सजाने की ख्वाहिश होगी और 5-6 माह के बाद जो है जब वक्त ज़ाय हो जाएगा तो फिर कहेंगे कि जी हमारे रास्ते जुदा हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि हम किसी एक फैसले पे ठहरते ही नहीं है। अपोजिशन के 10 अरकान कौमी असम्बली फार्म 47 की वजह से ऐवान में है। शरफजल मरवत का इंकशाफ। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन इत्तेहाद के 6 माह ज़ाया करेंगे फिर छोड़ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन में है ही नहीं। पीटीआई वालों का मसला यह है कि एक फैसले पर डटे नहीं रहते। आईनी बेंच किसकी तजवीज़ थी? पीटीआई तहकीकात करे और नाम सामने लाए। पीटीआई का सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स बानी पीटीआई के कंट्रोल में नहीं। सलमान अकरम राजा अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाएं, उनसे माफ़ी मांग लूंगा। शरफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। किसी भी कौम या किसी मुल्क की एक शनाख्त होती है, उसकी रवायात, उसकी मजहबी रवादारी, उसकी इज़्ज़त और आबरू जो है इस बात से जांची जाती है कि वहाँ पे मजहबी अक़लियतें, नस्ली अक़लियतें किस हाल में रह रही हैं। मुतशद्दिद रवैये हैं वो वक्तन फ़क्तन जो है आपको सामने नज़र आते हैं और ये बायस शर्मिंदगी होते हैं किसी कौम और किस मुल्क के लिए। रवायात और मजहबी रवादारी किसी भी मुल्क की शनाख्त होती है। बर्दाश्त हमारे मजहब का हम जुज़्व है। मुल्क को मजहबी मनाफरत से पाक करेंगे। पुरतशद्दुद रवैये कौम और मुल्क के लिए बाइस शर्म है। इस सरजमीन पर सबका बराबर हक है। आईने पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। अक़लियतों को मजहबी रसूमात की अदायगी की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अक़लियती बरादरी के लिए इक़दामात लायक़ तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत बड़ा किरदार है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में मिनॉरिटी कार्ड तक़सीम की तकरीब से खिताब। शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। मुल्क की मईशत रोज़ ब रोज़ ख़राब हो रही है। गुज़िश्ता 2 साल से मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आई। मज़ीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। 2 साल में 20 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। मुसल्लत शुदा हुकूमत हर जगह फेल हो रही है। रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी तहरीक तेज़ करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के प्लेटफार्म से सब पार्टियों से मिलकर प्लान बन रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ चुकी, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। हुकूमत को फौरी तौर पर आज़ाद और मुनसफाना इलेक्शन कराने चाहिए। तमाम अलायंस की मीटिंग बुला रहे हैं। कौमी एजेंडे को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी अवाम के पास जाएंगे। FIRs वापस लेकर गिरफ्तार वर्कर्स को रिहा किया जाए। PTI रहनुमा असद कैसर का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। PTI पेशावर का एहतजाज का इंदिया। सूबे में तीसरी बार PTI की हुकूमत है, अब भी पेशावर अहम मसाइल से दो चार है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर अपने ही पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की तनकीद, फौरी मसाइल हल न होने पर एहतजाज की धमकी। पेशावर शहर में सीवरेज का निज़ाम तबाह है। बारिशों के बाद शहर सैलाब का मंजर पेश करने लगता है। पेशावर के कई इलाके पीने के साफ पानी से महरूम है। पेशावर का तरक्याती फंड दूसरे जिला में मुंतकिल किया जा रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2009 में तजवीज़ किया गया, अब तक अमल दरामद न हो सका। पेशावर में तरक्याती काम न होने के खिलाफ PTI की ज़िली तंजीम के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की अज़रबैजान के हम मनसब से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इसाक डार की इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास की साइडलाइंस पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। रुकन कौमी असम्बली अज़हर क़य्यूम नाहरा, रुकन कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार भट्टू और रुकन सूबाई असम्बली फ़िदा हुसैन भट्टू शामिल। मुतल्लिका हलकों के उमूर और मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की अरकान को अवाम से राब्ता रखने और उनसे के मसाइल हल करने की हिदायत। आज मेयर कराची ने कहा है कि उसके पास इख्तियारात नहीं। मेयर कराची गवर्नर हाउस आए, उनको बताता हूँ बगैर इख्तियारात कैसे काम होता है। दिल से काम करना हो तो इख्तियार नहीं, इखलाक की ज़रूरत होती है। कराची शहर में कचरे के अंबार लगे हुए हैं। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी के तनकीदी बात। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, कब्र कुशाई के बाद मकतूल की मेडिकल रिपोर्ट तैयार। कब्र कुशाई के बाद मुस्तफ़ा आमिर की बॉडी से 11 नमूने लिए गए। नमूनों में किसी भी नशा आवर चीज़ के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट पर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, मुआवन तफ्तीशकार और टेक्निकल मैनेजर के दस्तखत मौजूद। रिपोर्ट पुलिस को जमा करवाई जाएगी। कराची में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 15 रमज़ान से बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। टाइम में तोसी का फैसला आवाम को बेहतर और सहूलत बख्श सफरी ऑप्शन फराहम करने के लिए किया गया। हुकूमत सिंध कराची के शहरियों की फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। शहर कायद के अवाम पीपल्स बस सर्विस की तोसी शुदा औकात की सर्विस का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहल पर तूफान अल्फ्रेड ने क़यामत ढा दी। शहर झील में तब्दील, निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम, लाखों अफराद बिजली से महरूम। रियासत क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में बड़े पैमाने पर तबाही, तेज़ हवाओं के बायस दरख्त जड़ से उखड़ गए। कई इमारतें तबाह हो गईं। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 2 फौजी ट्रक आपस में टकरा गए। 36 सिपाही जख्मी हुए। न्यू साउथ वेल्स में 16,000 से ज़ायद अफराद को फौरी तौर पर नकल मकानी के अहकाम जारी। शहरियों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी घरों से बाहर और नकलो हरकत से गुरेज करने की हिदायत।